ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات ملتان بار کی تاریخ میں پہلی بار خاتون امیدوار صدر منتخب ہو گئی۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی سیدہ بشرا نقوی نے 1282 ووٹوں سے میدان مار لیا۔ جنرل سیکریٹری کی نشست پر ملک سعادت حسین 1170 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ آپ کو بتا رہے سالانہ انتخابات ملتان بار کی تاریخ میں پہلی بار خاتون امیدوار صدر منتخب ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ماہر عمران سے۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ بار ملتان میں موجود ہیں اور ڈسٹرکٹ بار کے سالانہ انتخابات کے نتائج آ چکے ہوئے ہیں اور صدارت کی نشست پر سیدہ بشرا نقوی جو ہیں وہ انہوں نے میدان مار لیا ہے اور ملتان کی 100 سالہ یہ ڈسٹرکٹ بار کی تاریخ میں وہ پہلی صدر ہیں، بلکہ پورے جنوبی پنجاب کی وکلا بار میں پہلی صدر جو ہے وہ منتخب ہوئی ہیں۔ اگر ہم ووٹوں کی بات کریں تو 1282 ووٹ حاصل کر کے ون ہوئی ہیں۔ 973 جو مخالف امیدوار محمد چودھری محمد افضل جٹ تھے انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں اور وہ ناکام ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم جنرل سیکرٹری کی بات کرتے ہیں تو ملک سعادت حسین جو ہے وہ ونر قرار پائے ہیں اس ڈسٹرکٹ بار کے انتخابات میں۔ اگر ان کے ہم ووٹوں کی بات کریں تو ملک سعادت حسین نے جو ہے بھاری ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ 1170 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور مد مقابل جو امیدوار تھے چودھری افضل جو سندھو وہ ہار چکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ملک سعادت حسین بھی موجود ہیں، ان سے ہم جانتے بھی ہیں، ان کے جو دیگر ووٹران ہیں جو سپورٹران ہیں وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں۔ اس وقت دیگر جیتنے والے بھی موجود ہیں، بہت بہت مبارک۔ اور روہی کی جانب سے بھی جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے، منشور کیا تھا، آگے کس طرح سے آپ چلیں گے، کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے تمام دوستوں کا، اپنے سینئرز کا بھی بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس کامیابی میں بھرپور میرے سے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی نصیب کی۔ میں انشاءاللہ ڈسٹرکٹ بار کے مفاد کے لیے کام کروں گا۔ میں انشاءاللہ میرا لائے عمل جو ہے وہ ینگسٹر کے لیے ہے کہ میں کمپنیز کی جو لیگل ایڈوائزری ہے وہ ینگسٹر کو لے کے دوں تاکہ وہ یہاں سروائیو کر سکیں اور بار کو ایک اچھے پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کرتے ہوئے انشاءاللہ میں اپنی کوششیں کرتا رہوں گا اور بار کے وقار، کالے کوٹ کے وقار کے لیے کام کروں گا۔ بہت مہربانی۔ وقار کے لیے کیا کہیں گے اس جیت کے حوالے سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ میں اپنے تمام دوستوں کا، اپنے تمام سینئرز کا، بالخصوص جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور جن لوگوں نے ہمیں گائیڈ کیا، ان تمام کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سیکرٹریشپ میں اچھے انداز میں سعادت بھائی کو چلانے میں مدد فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نگینہ مظفر حراج ہیں، وہ جوائنٹ سیکرٹری کی نشست پر کامیاب ہو چکی ہوئی ہیں۔ اسی طرح دیگر اگر امیدواروں کی ہم بات کریں تو دیگر ابھی کاؤنٹنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ دیگر امیدواروں کی نائب صدارت کی نشست پر بھی جو ہے وہ اس وقت جو رزلٹ ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں اور نائب صدر کی نشست پر صادق انصاری جو ہیں وہ بلکہ نعیم ارائیں جو ہیں وہ ون قرار پائے ہیں۔ مد مقابل 3 امیدوار ہار چکے ہیں۔ پورا دن پرامن طریقے سے الیکشن جاری رہا۔ اس وقت جیتنے والے جو امیدوار ہیں، نومنتخب امیدواروں کے جو حامی ہیں وہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ ان کو مختلف طریقوں سے یہاں پہ جو ہے ڈھول کی تھا پر بنکڑے بھی ڈالے گئے ہیں، پھولوں کے ہار بھی پہنائے جا رہے ہیں اور یہ ابھی جو نئے جو لوگ آ رہے ہیں جو جیتنے والے ان کے حامی ہیں ان کو مبارکبادوں کا جو سلسلہ ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کی بات کریں تو مجموعی طور پر 3700 سے زائد جو ووٹرز وکلا ہیں انہوں نے آج حق رائے دہی استعمال کرنی تھی، جن میں سے آج 1280 ووٹرز وکلا نے حق رائے دہی استعمال کیا اور 60% اس طرح سے مجموعی طور پر آج جو ٹرن آؤٹ رہا، سردی بھی خاصی تھی، اس وقت بھی جشن ہے۔ وکلا حامی جو ہے ڈھول کی تھا پر بنگڑے بھی ڈال رہے ہیں اور ہم اس وقت کچہری میں موجود ہیں۔ دیگر جو نشستیں ہیں ان پر ابھی کاؤنٹنگ جاری ہے، جن میں اگر ہم بات کریں تو آڈیٹر کی نشست پر ابھی جو کاؤنٹنگ ہے وہ جاری ہے، جبکہ باقی جو نشستیں ہیں ان پر آ چکے ہوئے ہیں، رزلٹ فائنل ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ میرے ساتھ دیگر جو امیدواران ہیں جیتنے والے ہیں ان سے ہم ان کے حامیوں سے بھی جانتے ہیں، کیا کہیں گے آج کے انتخابات کے حوالے سے، کسے سپورٹ کر رہے تھے، کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ ملک سعادت صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تمام دوستوں کا شکر ہے جنہوں نے ساتھ دیا ہے
और इंशाअल्लाह मलिक साहब के जो मिशन है कि वो जो हारने वाले कैंडिडेट हैं दूसरे सब वकीलों के इंशाअल्लाह वो काम करेंगे। और इसी एक मुबारकबाद देने के लिए क्या कहेंगे आज के इलेक्शनों के हवाले? हाँ जी, ये जो भी विनर अपना उम्मीदवार है उनको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम दोस्त भाइयों ने अपने तावन से उन्हें कामयाब किया है और इंशाअल्लाह वो भी इन तमाम दोस्त भाइयों की उमंगों पर पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया महार इमरान, आप हमें मुल्तान बार के नताइज से आगाह कर रहे थे। बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शंस में सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों के नताइज मौसूल। सदर की नशिस्त पर शेख खुर्शीद कामयाब, जनरल सेक्रेटरी मुनीब भट्टी ने कामयाबी हासिल कर ली। आपको बता रहे हैं बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शंस में सदर और जनरल सेक्रेटरी की नशिस्तों के नताइज मौसूल। सदर की नशिस्त पर शेख खुर्शीद कामयाब हो गए। मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के इंतखाबात के हवाले से नताइज आ गए। नताइज के मुताबिक वही हुआ जो होना था। शेख खुर्शीद साहब और मुनीब भट्टी साहब सदर और जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। ये देखिए मुलाकात का सिलसिला जारी है सब लोगों में। क्या कहेंगे शेख साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने उन बुजुर्गों का, अपने भाइयों का और अपनी बहनों का शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली मैं अपने क्लास फेलोज का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे भरपूर सपोर्ट की और मुझे इस मकाम पर लेकर है। और इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम जितने भी यहाँ पे दोस्त हैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इस मकाम के ऊपर इस बार मुझे फतह नसीब की। मैं अपने ग्रुप के सीनियर्स का, अपने वालिद साहब का, जिशान भाई का और सब अपने बाहर के मोअज़्ज़िज़ मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे कामयाब किया। आज तो होगी हैदर जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज बहावलपुर बार के वकला ने इस शराफत और संजीदा शख्सियात को न सिर्फ मुंतखब किया बल्कि भारी अक्सरियत से कामयाब करवाया, जो बहावलपुर के वकला का इन पे एतमाद का इजहार है। तो इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे ये दोस्त इंशाल्लाह अपनी फतह, शानदार फतह जिस तरह से मिले, इंशाल्लाह ये शानदार रिवायत को लेकर आगे चलेंगे और इंशाल्लाह बार के बेहतर मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। मौजूदा से साबिक जनरल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप के दोनों कैंडिडेटों ने भारी लीड से कामयाबी की है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों बहावलपुर बार की फलाह के लिए काम करेंगे और बहावलपुर की बार की फलाह के लिए और वकला की फलाह के लिए काम करेंगे। इलेक्शन रिजल्ट्स मौसूल जिसके हवाले से आप देख रहे थे। जी बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दुनियापुर में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान। मलिक अख्तर इकबाल आवान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक अख्तर इकबाल आवान 171 वोट लेकर सदर मुंतखब। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। दुनियापुर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के नताइज का ऐलान। मलिक अख्तर इकबाल आवान ग्रुप ने मैदान मार लिया। मलिक अख्तर इकबाल आवान 171 वोट लेकर सदर मुंतखब। फातेह उम्मीदवार के हामियों का जश्न, मिठाइयां तकसीम की। मजीद जानते हैं याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिए। मैं इस वक्त दुनियापुर बार एसोसिएशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आज सदारती इंतखाबात हुआ जिसमें के मलिक अख्तर अवान ने 171 वोट लेके कामयाबी हासिल की। इस वक्त जो है सदर अख्तर अवान मेरे साथ मौजूद, जानते हैं कि वो इस मौके पर कैसा रहा। आज माशाल्लाह कामयाब है, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी याकूब भाई, आपने टाइम निकाला। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, जितना शुक्र अदा करें कम है। मेरे सारे दोस्तों ने, मेरे सारे भाइयों ने मिलकर काविश की, मेहनत की, उसका नतीजा अल्लाह ताला ने कामयाबी की सूरत में हमें दिया है। इंशाअल्लाह ताला हम, अल्लाह ताला ने जैसे हमें इज्जत दी है, बाहर के मसाइल को हल करने में हम अपनी तौर पे पूरी कोशिश करेंगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि दुनियापुर की तारीख में इतनी लीड से कोई सदर नहीं जितनी मुझे अल्लाह ताला ने लीड दी है। जनरल सेक्रेटरी साहब अदनान ताहिर गिल साहब, सर आप क्या कहेंगे? मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस जमहूरी अमल में दोस्तों ने हम पे एतमाद किया और हमें मुंतखब किया। मैं अपने बाहर के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे एतमाद किया। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। इंशाल्लाह दुनियापुर बार ने हमें मुंतखब किया है। इंशाल्लाह ये पूरा साल हम हर तरह बार की खिदमत करेंगे और जो भी वसाइल होंगे वो बार पे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आपने हमें दुनियापुर बार के नताइज से आगाह किया। के रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी। वोटर्स एंड सपोर्टर्स रिजल्ट के ऐलान के मुंतजिर हैं। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद गिनती का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आमिर भट्टी से। जी आमिर भट्टी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, कब तक रिजल्ट अनाउंस होना मुतवक्के है?
बिल्कुल रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट बार के सालाना इलेक्शन में इस वक्त गिनती का अमल जारी है और वोटर्स और सपोर्टर्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मौजूद है। इस वक्त जो है वो गैर हतमी और गैर सरकारी रिजल्ट जो है वो सामने आना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं कि हार पहने हुए मुबशर नजीर लाड एडवोकेट मौजूद हैं। फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स वकला इत्तेहाद, इनका जो है वो सदर की जो सीट है जीतने का जो रिजल्ट है वो सामने आ चुका है। वो हमारे साथ मौजूद है, उनके कायदीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस जीत के हवाले से क्या कहेंगे? अभी जो मजीद रिजल्ट आने उसके लिए क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करता हूं और उसके बाद मैं अपने कायदीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरी जीत में उनका सबसे अहम किरदार था। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार के हर नौजवान वकील का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि ये मेरी जीत नहीं है, ये मेरी जीत नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट बार के हर नौजवान की जीत है। डिस्ट्रिक्ट बार का हर नौजवान इस बार का प्रेसिडेंट है और इंशाल्लाह वकला की डिग्निटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। इंशाल्लाह आपको पता लगेगा कि हमने वकीलों की खिदमत की है। बार को अगर ताले लगाए होते तो आज ये जीत ना होती। बिल्कुल कायदीन भी हमारे से मौजूद है, गला इनका जो है वो सामने है लेकिन जज्बा जो है वो देदनी है। कायदीन है सरदार अब्दुल बासित खान एडवोकेट हमारे से मौजूद है। सर, रिजल्ट आना शुरू हो चुका है, पहला रिजल्ट आपके सामने है, फूलों के हार और मुबारकबाद का तांता जो है वो बंधा हुआ है। अभी मजीद रिजल्ट आ रहे हैं, उनकी क्या तवक्कुआत है? इंशाअल्लाह उल अजीज मैं अल्लाह पाक के हुजूर दस्त बदुआ भी हूँ और सजदा शुक्र में भी हूँ कि तमाम बार्स मेंबरान की मोहब्बत से अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी अता की है। मुबशर नज़ीर लाड बतौर सदर और ज़ीशान जहांगीर बतौर सेक्रेटरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं और पूरा पैनल क्लियर होगा। ये खिदमत का साल रहता है, हम खिदमत के जज्बे से काम करते हैं और खिदमत करते हैं। खिदमत की वजह से सबका रिकॉर्ड जो है मुसलसल साल से 2021 के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पैनल पूरा का पूरा जीत रहा है। सबका सदर तैयब सदीक चदर साहब मौजूद हैं। मौजूदा सदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ दिस बार एसोसिएशन रहीम यार खान मुबशर नज़ीर लाड की फार्म में मेरे अकाबरीन मलिक साजिद अली फिरोज साहब जो चेयरमैन हैं हमारे, और मियाँ खलीलुर रहमान साहब हमारे अकाबरीन में, हमारे वन ऑफ दी चेयरमैन हैं, को चेयरमैन हैं, हमारे अकाबरीन में हैं, हमारे बड़े हैं। इसी तरह यंगस्टर्स ग्रुप में सरदार शहजाद असगर खान रिंद हैं, हमारे वकला इत्तेहाद में चौधरी जुल्फकार साहब हैं जो वकला इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, रमज़ान शमा साहब हैं, खादिम हुसैन खान। आमिर भट्टी रहीम यार खान बार की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ईसाखेल में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का नतीजा आ गया। यूनाइटेड ग्रुप ने मैदान मार लिया। यूनाइटेड ग्रुप के सईद अख्तर खान 22 वोट लेकर कामयाब। रहीम शाह ग्रुप के काजी शहबाज खान ने 18 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर यूनाइटेड ग्रुप के मोहम्मद इमरान खान कामयाब। यूनाइटेड ग्रुप के कामयाब उम्मीदवारान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। आपको बता रहे हैं ईसाखेल में बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का नतीजा आ गया। यूनाइटेड ग्रुप ने मैदान मार लिया। यूनाइटेड ग्रुप के सईद अख्तर खान 22 वोट लेकर कामयाब। रहीम शाह ग्रुप के काजी शहबाज खान ने 18 वोट हासिल किए। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर यूनाइटेड ग्रुप के मोहम्मद इमरान खान कामयाब। यूनाइटेड ग्रुप के कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। कायदे आजम लॉयर ग्रुप और यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। जीत के बाद ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। कायदे आजम लॉयर ग्रुप में सदर मलिक रमजान अवान ने 1 वोट से मैदान मार लिया। जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट मलिक कादिर बख्श गंजियाल ने 9 वोटों से मैदान मार लिया। नायब सदर पीर सैयद मुख्तियार हुसैन शाह गेलानी ने 9 वोटों से मैदान मारा। पूरे पैनल की जीत पर वकला की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। आपको बता रहे हैं खुशाब से ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। कायदे आजम लॉयर ग्रुप और यूनाइटेड इत्तेहाद ग्रुप ने मैदान मार लिया। जीत के बाद ढोल की थाप पर भंगड़े और मिठाइयां तकसीम की जा रही है। कायदे आजम लॉयर ग्रुप में सदर मलिक रमजान अवान ने 1 वोट से मैदान मार लिया। जनरल सेक्रेटरी पर एडवोकेट मलिक कादिर बख्श गुंजियाल ने 9 वोटों से मैदान मार लिया।
नायब सदर पीर सैयद मुख्तियार हुसैन शाह गिलानी ने 9 वोटों से मैदान मारा। पूरे पैनल की जीत पर वुकला की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। फोर्ट अब्बास में बार एसोसिएशन के इलेक्शन की पोलिंग मुकम्मल। बार एसोसिएशन में वोटों की गिनती का अमल जारी है। कांटेदार मुकाबले के बाद वुकला नताइज के मुंतजिर। 146 में से 139 वुकला ने हक के राय दही इस्तेमाल किया। चौधरी अकबर अली ग्रुप और फ्रेंड्स लायर्स ग्रुप में सख्त मुकाबला। सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर दिलचस्प मुकाबला हुआ। आपको बता रहे हैं फोर्ट अब्बास में बार एसोसिएशन के इलेक्शन की पोलिंग मुकम्मल हो गई है। बार इलेक्शन में वोटों की गिनती का अमल जारी। कांटेदार मुकाबले के बाद वुकला नताइज के मुंतजिर। 146 में से 139 वुकला ने हक राय दही इस्तेमाल किया। चौधरी अकबर अली ग्रुप और फ्रेंड्स लॉयर्स ग्रुप में सख्त मुकाबला मुतवक्के। सदर और जनरल सेक्रेटरी के ओहदों पर दिलचस्प मुकाबला हुआ। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि मोटरवे की बंदिश का फैसला शहरियों की हिफाजत के लिए किया गया है। आपको बता रहे हैं मुल्तान शहर और गिरदोनवा में शदीद धुंध का राज है। मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध की वजह से बंद है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा मुल्तान सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की अगर बात करें तो इस वक्त मुल्तान और इर्द गिर्द के इलाके जो है वो शदीद धुंध की लपेट में है और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। धुंध के पेश नजर जो है वो शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मोटरवेज को जो है वो बंद कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों के लिए मोटरवे M5 मुल्तान से रोहड़ी तक बंद की गई है। तर्जुमान जो सेंट्रल रीजन है मोटरवे पुलिस, उनके मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे को बंद किया गया है और शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो गैर जरूरी सफर जो है उससे परहेज करें। ऐसे शहरी जो आज मुल्तान से रास्ता रोहड़ी सफर करने वाले थे वो अब नहीं कर सकेंगे। मोटरवे बहुत ज्यादा है और शाम गई ही धुंध जो है उसका आगाज हो चुका था, लिहाजा मोटरवे को बंद किया गया है। अगर शहरियों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे को जो है ट्रैफिक के लिए मिला जाएगा। जब तक धुंध मौजूद है और हद निगाह तक है तब तक मोटरवे बंद रहेगी और शहरी मोटरवे पर सफर नहीं कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सुहेरा, आप हमें मौसम की सूरत हाल से आगाह कर रही थी। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई का राज बरकरार। नाजायज़ मुनाफाखोर माफिया शहरों को लूटने में मसरूफ़ हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दफ्तरों की हदों तक महदूद हैं। सब्जियां और फल आम शहरियों की पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज मेथी सबसे सस्ती सब्जी है, जिसका सरकारी नर्ख 19 रुपये जबकि मार्केट में 35 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान जमीर। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई को रिवर्स गियर न लग सका। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल होने की वजह से नाजायज मुनाफाखोर माफिया बेलगाम। सबसे सस्ती सब्जी मेथी सरकारी रेट लिस्ट में 19 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 35 से 40 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्खों में अदरक 280, लहसुन 325, पालक 32, बैंगन 24 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 350, लहसुन 400, पालक 50, बैंगन 40 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में टमाटर 48, टिंडे 38, साग 54 और चुकंदर 64 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में टमाटर 60, टिंडे 50, साग 70, चुकंदर 80 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे में गाजर 32, मटर 64 और सुहांजना 214 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गाजर 60, मटर 100 और सुहांजना 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। गरीब आदमी के लिए फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। सरकारी निर्खों में अनार 556, अमरूद 145, पपीता 264 और चीकू 260 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अनार 350, अमरूद 150, पपीता 350 और चीकू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 345, खरबूजा 140 और मौसमी 76 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 400, खरबूजा 200 और मौसमी 100 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में फ्रूटर 86 और किन्नू 108 रुपए फी किलो, जबकि केले 125 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। सरकारी कीमत 556 रुपए फी किलो, जबकि अंडे 320 रुपए फी दर्जन हैं। इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करे ताकि शहरियों के लिए सस्ती और मियारी अशिया खुरोनोश खरीदना मुमकिन हो सके। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
کہ کمشنر ڈی جی خان اشفاق احمد چودھری کا علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال کا دورہ، مریضوں کو فراہم طبی سہولیات ادویات کی دستیابی بارے انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کا مختلف وارڈز کا بھی معائنہ، مریضوں اور لواحقین سے ملاقات کی۔ کمشنر ڈی جی خان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق صحت سہولیات کی بہتری کے اقدامات جاری ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں معیاری علاج اور بلا تعطل سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ کمشنر کا مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات اور طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم۔ کمشنر کا ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ آپ کو بتا رہے تھے کہ انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر بہاولپور مسرت جبیں اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ظہیر انور کا لیاقت پور میں ماڈل بازار اور ٹی ایچ کیو کا دورہ۔ کمشنر بہاولپور نے سائلین کے مسائل سنے اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سائل کی درخواست پر کمشنر بہاولپور نے چلڈرن پارک کا بھی دورہ کیا۔ کمشنر نے سائلین کے مسائل فوری طور پر حل کرنے کے احکامات دیے۔ ڈی سی لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اے ڈی پی کا 14 ارب روپے مالیت کی 19 ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت کا جائزہ۔ کہا مریم نواز ہیلتھ کلینک پروگرام 1 ارب 17 کروڑ 60 ہیلتھ مراکز کی ری ویمپنگ جاری۔ پنجاب خوشحال پروگرام کے تحت 97 کروڑ سے 48 کلومیٹر سڑکوں کی منظوری مراحل میں داخل۔ پنجاب رورل میونسپل سروسز کمیٹی کے ذریعے 90 کروڑ سے 8 دیہات ترقی پائیں گے۔ ورلڈ بینک کی 7 ارب گرانٹ سے تحصیل کہروڑ پکا کے 12 دیہات میں بہتری آئے گی۔ لودھرا کی 32 سڑکوں کے انفراسٹرکچر کی بہتری کی سمری میں سی ایم آفس کو ارسال کر دی گئی ہے۔ مالی سال 2026-27 کے نئے منصوبے کی تجاویز پر بھی غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ترقیاتی اسکیموں کی بروقت تکمیل ضروری ہے۔ ترقیاتی منصوبوں میں میٹیریل پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ترقیاتی اسکیموں کے لیے انجینئرنگ میں اضافی معاونت فراہم کی جائے گی۔ واٹر سپلائی اور سیوریج کی عوامی مفاد کی اسکیمیں جلد مکمل کی جائیں گی۔ سست رفتار اسکیموں پر کام تیز کیا جائے۔ ڈی سی لودھرا محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اور ڈپٹی کمشنر وہاڑی خالد جاوید گورایا کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر فہد وحید اور ایم ایس ڈاکٹر احمد فراز بھی ہمراہ موجود۔ ڈپٹی کمشنر کا طبی سہولیات ادویات کی دستیابی اور صفائی کے انتظامات کا معائنہ۔ ڈپٹی کمشنر نے مریضوں سے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں نے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اسپتالوں میں بہترین سروس ڈیلیوری وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کی ترجیح ہے۔ ملتان کی اہم شاہراہوں پر غیر قانونی روڈ کٹس، حادثات اور ٹریفک بہاؤ میں رکاوٹ کی وجہ قرار۔ کمشنر ملتان کا شہر بھر میں غیر قانونی روڈ کٹس اور ناجائز سائن ایج کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کمشنر ملتان کا انتظامیہ کو بغیر اجازت 2 ہفتے کی مہم شروع کرنے کا حکم۔ سینٹرل میڈین گرین بیلٹس اور رائٹ آف وے میں لگے غیر قانونی پبلسٹی بورڈز ہٹانے کا حکم۔ کمشنر کا کہنا تھا کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قبضہ برداشت نہیں، سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ شہری از خود غیر قانونی روڈ کٹس اور بورڈز ہٹا لیں، بصورت دیگر جرمانہ اور ضبطی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹریفک کی روانی، عوامی تحفظ اور شہر کی خوبصورتی کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی نافذ۔ ڈویژن کے تمام ڈپٹی کمشنرز فوری کارروائی کر کے روک کمشنر آفس میں جمع کرائیں۔